हाँ, अरे the whole perspective of job search change. I realize, and it is not only about job search. I realized it because I do a lot of prospecting on various platforms as well in my business. I realized there is a way to connect to people, not necessarily just go directly and then tell them that will you do my prospect and all those things. मैम मैंने डिस्कवर किया था फेसबुक एड से. यस, फेसबुक एड्स. So I met, I forgot the name of the lady, sorry. So I met her a couple of times, and of course I wanted to get back into job, reason being I had my financial issues there. But the best part was I think she was very patient, not forcing me to take a decision when I told her that I need my time, because I was still in doldrums whether to go for job or still stick to entrepreneurship. But she gave me my time, so I thought, what, I think it's a good place. They're not forcing me to take a decision. It's a nice thing. So yeah, then जब भी हो गया कि 2 हफ्ते से बिजनेस नहीं चला था, आई थॉट लेट मी गेट बैक एंड डू सम जॉब. पैसे वापस आएंगे तो काम चलेगा. सो आई डिसाइडेड. हाँ, अरे the whole perspective of job search change. I realized, and it is not only about job search. I realized it because I do a lot of prospecting on various platforms as well in my business. I realized there is a way to connect to people, not necessarily just go directly and then tell them that will you do my prospect and all those things. I really like the networking part, honestly speaking. I mean, because for me, this was first time I was looking. I told you, this is the first time I was looking for a job. Every 3 jobs that I've done till now, they all have come to me. I have not gone after them. So I'm not used to searching job at all. For me, it was a completely new experience. But what networking वाला part, वो जो आपका management system है, where everything is managed and जो हम रिज्यूमे को अपडेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब वेरी क्विक एंड फास्ट ना, बहुत जल्दी जल्दी होता है काम. तो ट्रिवियल इश्यूज में आप एक्चुअली टाइम निकालते नहीं है. जो बेसिक चीज थी विच वाज द इनिशियल फाउंडेशन फेज, जहां पर हम सब चीजें लिस्ट डाउन कर रहे थे, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी क्रिटिकल. I think one of the phase also played a part कि मेरे को क्यों वापस नहीं जाना चाहिए. Reason being, मैंने started searching everything about, मैं ये भी करता था, ये भी करता था, ये भी करता था. There was a reason I chose entrepreneurship over job. And but वो बहुत deep activity है. I think one of the मुझे नहीं लगता आज तक किसी जॉब सर्च, मैंने जितनों के साथ भी आज तक बात की, किसी ने उतने डीप में गए. तो हुआ क्या कि जब वो डीप में जाते तो इट मेड मी रियलाइज मोर अबाउट माई सेल्फ. तो वो ज्यादा था, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल. जॉब वाले क्या पूछेंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपका कॉन्फिडेंस आपके कंट्रोल के अंदर है, विच वाज रियली ब्यूटीफुल. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. सो ओवरऑल डेवलपमेंट में first of all, of course, networking, as I told you, which is very very important in, I mean, be it job, be it business में और भी ज्यादा important हो जाती है. तो the way you network was very very like very important part of how you network, right? So वो जो मैंने आपसे आप लोगों से सीखा, which was very important, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत तरीके वाला है, and you got response. I did not know कि LinkedIn पे लोग respond करते हैं, honestly speaking, but मेरे पास अभी भी इतने भर के responses पड़े हुए हैं. So that was one thing, that was very nice. Second thing, I think one of the key thing was structured approach जो है. It is not as if कि see ये इनिशियली आई थिंक कोई प्रोग्राम करेगा तो उसको फील हो सकता है, ये मुझे भी हुआ था कि यार बहुत लंबी जर्नी है, थोड़ी सी बहुत कुछ करना पड़ रहा है पहले वहां पॉइंट पे पहुंचने के लिए. बट आई थिंक इट इज वर्थ इट. रीजन बीइंग क्योंकि सडनली आपको सडनली लगता है कि आपको अपनी रिज्यूमे में सब कुछ पता है, जो कि अगर आप मेरे जैसे कोई होता जो ऑलरेडी 3 इयर्स गैप के बाद आता, तो मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था ये फाइंड आउट करना कि रिज्यूमे में मैंने किया क्या क्या था, और किया भी था तो क्या किया था एग्जैक्टली. बट जब वो लिस्ट डाउन करना शुरू किया तो वो बहुत मजेदार था. एंड जो आई मीन ओवरऑल प्रोफेशनल ग्रोथ में ना, the confidence of how you pitch yourself to the market where people you don't know, वो एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, जो कि ऑनेस्टली हर पर्सन को पता होना चाहिए. बिकॉज आई मीन दैट इज द फर्स्ट स्टेप हाउ यू आर पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ टू द अदर पीपल. एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत बढ़िया. वो ऑटोमेटेड कर दिया वो तो और भी अच्छा है. या एंड ओके, आपकी इनिशियल एक्सपेक्टेशन क्या थी प्रोग्राम से,
और जितना भी आपने प्रोग्राम को लिया, तो लाइक डिड इट मीट द एक्सपेक्टेशन, या कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, there was this cycle that happened. So initially I was like, क्या बॉस, ये तो ऐसा चुटकी भर का काम है, हो जाएगा, बिकॉज लगता भी वैसा ही है जब भी हमको शुरू करते हैं, तो हो जाएगा, राइट? ओके, अभी जब वो हार्डवर्क वाला जोन आया ना, व्हेन दैट लाइक रियली वो डीप में गए, चीजें हमने फाउंडेशन शीट भरी कि स्किल क्या है एग्जैक्टली, टारगेट किस रोल को करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड मेजर रिची के जो लेसन्स भी थे सारे के सारे वो देखे, तो थोड़ा सा मैं बहुत ओवरवेल्म हो गया था यार, वहां पे इतना कुछ करना पड़ता है क्या जॉब सर्च करने के लिए यार। बट वंस वो खत्म हो गया ना, वो तो कॉन्फिडेंस मिला उसके बाद, तो समझ में आया कि वो ग्राइंड था क्यों बीच में। तो मुझे बाद में अच्छा लगने लग गया। बीच में मुझे एक ऐसा फेज आया तो मुझे लगा यार बहुत बहुत ज्यादा हार्डवर्क हो रहा है, बढ़िया, बट वो बहुत अच्छा फेज है। आई थिंक एवरी आई हैव रिकमेंडेड नेक्स्ट जॉब टू मेनी पीपल इन बिटवीन, बहुत सारे लोगों को मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड किया, दोज हु आर इनटू जॉब्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उनको बताया है एग्जैक्टली कि आप जा सकते हो। रीजन बीइंग बिकॉज आई रियली लाइक द वे, ये कोई वैसा नहीं था कि हमारे पास कोई एजेंसी और हम सडनली जादू कर देंगे ऐसा करने के, दे मेड एक बहुत ही लॉजिकल वे बताया है व्हिच वुड मेक सेंस टू एनीवन, कि बस हाँ ऐसे ही जाना चाहिए, यही सही तरीका है। एंड आई थिंक कोई अगर एक बार इस एक्टिविटी को कर लेता है ना, तो उसका लाइफ लॉन्ग सॉर्टेड है कि जॉब सर्च कैसे करते हैं, वो ये बहुत जरूरी है। तो आई थिंक मतलब पहले थोड़ा डिफिकल्ट हल्का सा लग सकता है, बट इट इज कंप्लीटली वर्थ इट, जस्ट लाइक फिटनेस, शुरुआत में करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वंस यू डू इट तो फिर काम आसान लगने लग जाता है। इंटरव्यूज में एक्चुअली मैं इंटरव्यू आई थिंक 2018 के बाद पहली बार दे रहा था, तो 7 इयर्स बाद वो इंटरव्यूज हो रहे थे, तो मेरे को थोड़ा सा पहले तो बहुत अजीब लग रहा था कि यार somebody asking me this question, usually I am the one asking questions, अभी उल्टा हो रहा है तो थोड़ा सा अजीब हो रहा था उस टाइम पे। बट जो प्रिपरेशन थी, बेस प्रिपरेशन हमने की थी, उससे कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा था आंसर करने का, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है आंसर करने का, जिस तरह से हमने वो शीट में बताया हुआ है पूरा का पूरा, तो स्ट्रक्चर्ड वे में जब आप आंसर करते हो तो वी फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ यार तो टैकल हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो वो चीज बहुत सही थी। मैं मेरे वाले लेवल पे तो लोग उतना टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते भी नहीं है, ज्यादा टैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकल नहीं होते। तो इसीलिए इंस्टेंसेस रियलाइज करना कि कहाँ पे क्या किया था, किस सिनेरियो में क्या क्या हुआ था, वो बहुत जरूरी था, तो आंसरिंग इजी हो गई उसकी वजह से। yes. और इफेक्टिव भी ऑफ कोर्स। एक्चुअली मेरे लिए, क्योंकि see the last time I had searched for a job, not search for a job, I mean I had shifted a job, और अभी तो the world has changed quite a lot, AI आ गया है बीच में, so जो यूनिकनेस है वो तो एक तो टूल की है, बहुत बहुत सही है, बिकॉज लाइफ बहुत इजी हो जाती है। सेकेंड थिंग आई थिंक, एंड आई वुड लाइक गिव दिस क्रेडिट टू यू, बिकॉज वो जो आपके जो व्हाट आर यू कॉल्ड, आई डोंट नो, मैनेजर बोलते क्या बोलते, आई डोंट इवन नो व्हाट यू गाइस आर कॉल्ड, कि कुछ भी बोलते होंगे सामने, यू आर पॉइंट ऑफ माई, जैसे आप मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट? दैट सपोर्ट जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑनलाइन वर्ल्ड में जैसे मैं भी बिजनेस करता था, आई रियलाइज कि पीपल नीड क्वाइट अ लॉट ऑफ सपोर्ट, जानते नहीं है, फिजिकली मिले नहीं है, बट हाउ डू यू लाइक फिगर आउट कि कौन है करने वाला है। बट व्हेन आई कॉल्ड यू तो आपने रिस्पॉन्ड किया, ग्रुप में कुछ पूछा तो रिस्पॉन्स आया वापस, सेशंस में बहुत डीप में चीजें बताई गई, तो मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब लिटरली कि ये हैंड होल्डिंग वाला। वन थिंग इज कि आपने किसी को रिज्यूमे दे दिया किसी जॉब एजेंसी को लेके, उन्होंने कुछ अपडेट कर दिया और भेज दिया, एंड देन वो एक अलग बात है। बट ये प्रोग्राम जो है ये आउटराइटली, एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिकॉज यस ये इंक्लूड करता है उस चीज को। तो आप बाय डिफॉल्ट इंटरव्यू प्रेप भी कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट आप बाकी रिज्यूमे भी बना लेते हैं, बाय डिफॉल्ट आप पूरी अपने अकम्पलिशमेंट्स भी याद कर लेते हैं, क्योंकि somebody जिसका करियर बहुत लंबा है, उसके लिए आज से 10 साल पहले क्या किया था वो याद करना बहुत डिफिकल्ट है, ऑनेस्ट नहीं याद रहता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत डिफरेंट है कि जो होलिस्टिक अप्रोच है जॉब सर्च कराने का, वो बहुत ही बढ़िया है। एक चीज और, वो जो आपका एक इंटरव्यू प्रेप टूल है ना, वो बहुत अच्छा है, जहाँ आंसर डोर वो बताता है कि एग्जैक्टली विच इज समथिंग, आई हैव समथिंग इन माय माइंड कि मुझे भी कुछ ऐसा डेवलप करना है। सो या that's got into one of my goals कि मुझे भी कुछ वैसा डेवलप करना, not exactly same, मेरा रिक्वायरमेंट अलग है, but that really helps, that really helps. See, I mean मेरे केस में things are bit how do you say, bit different, different in the sense कि because
फॉर मी गेटिंग बैक इनटू अ जॉब इज लाइक वाज अ फोर्स थिंग, मेरे को तो बाई चॉइस नहीं जाना था वहां पर। तो इन टर्म्स ऑफ, देखो एक तो है कि आपको बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिल जाता है, बिकॉज द वे नेक्स्ट जॉब का स्ट्रक्चर है, जिससे हम जॉब एनालाइज करते हैं, जेडीज एनालाइज करते हैं, जो लोग जो मांग रहे हैं, देन वो पूरा हम मैपिंग करते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि आप कहाँ पे लैकिंग है, वर्ल्ड कहाँ चल रहा है, तो आपको गैप समझ में आता है। देन देयर इज दैट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाला शीट जहाँ पे आप स्किल मैपिंग करते हो प्रॉपर एग्जैक्टली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे मुझे समझ में अच्छा ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ कि अच्छा यार इतने साल पहले कौन सा काम कहाँ पे मैंने किया था जो एक्चुअली मेरे फेवर में काम किया। So one of the key reasons for me to take the decision that I've taken today is that activity that made me realize कि नहीं boss, there was a reason I took that decision. Yeah. Which became very, see at the end of the day what I guess what next job would also want is to make people realize their own potential and then probably help them वही करने के लिए जो वो करना चाहते हैं लाइफ में। I mean, Exactly. of course, right? And you guys were successful in doing that. If I was very dissatisfied with it, I wouldn't have come on this session and said what I'm saying right now. But despite the fact that I'm not choosing that part and still I'm smiling and talking to you, that means I'm very happy with what the thing that I've chosen. I mean, really happy with the next job. Yes. You guys call it next job, I don't know. It's called NXT, right? Because next is something else, I guess. Yeah, next job is something else. We call it next job, but we have removed E. And I have not even asked Richik why we have done so. Maybe there was some brand name issue. So yeah. Okay, let's come to any wow moment. Though you have covered many aspects, any story or example जो बता सके next job का एक transformative impact. That actually came while so before the resume preparation, we do that foundation wala activity, right? The foundation sheet activity that we do. Yes. For me, because my profile was marketing heavy profile, marketing and sales heavy profile, for me, since I left my core marketing job in 2018, it became very difficult for me to realize what I had done. I mean, ऊपर से याद आता है कि अच्छा आपने ये किया था, वो किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था. But जब मैं वो एक्टिविटी कर रहा था ना, तो मुझे समझ में आया कि मैंने क्या क्या किया था. बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आपको ऐसे क्लिक नहीं कर रहा होता सडनली, आप ऐसे रैंडमली बैठे तो आपको क्लिक नहीं करता इन चीजों के बारे में कि अच्छा आपने क्या किया है, आज से 7 साल पहले क्या किया था, 6 साल पहले क्या किया था. लेकिन मुझे याद था कि बहुत डिफिकल्ट टाइम था, बिकॉज किया बहुत कुछ था, बट वो स्ट्रक्चर के थ्रू जब जाते हैं ना, जब निकालते हैं, तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा. सेकेंड थिंग, बिकॉज यू गाइज आस्क्ड मी टू नेटवर्क, एंड जैसे आपके सिस्टम भी नेटवर्किंग में काफी बेस्ड है, lot of people whom I am, and this is very personal thing, like lot of people whom I have talked to, like कितने सालों से बात नहीं की थी, I got connected to them. And believe me, I never realized how happy they were to see me जब मैं उनसे बात कर रहा था. So, yeah. which was really nice. I mean, मुझे ओवरऑल ना मेरा मतलब मुझे ओवरऑल वाव ही था. रीजन नहीं, मैंने आपको बताया, मेरा पहला एक्सपीरियंस था जॉब खुद से सर्च करने का, तो मेरे लिए तो सब वाव ही था, मेहनत वाला था, बट वाव वाला ही था सारा का सारा. तो मुझे तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी कोई है जो मार्केट में जस्ट हाउ डू यू से एक ट्रांजैक्शन एक्टिविटी के बजाय एक रियल फोकस लेके काम कर रहा है. क्या सामने वाले का डेवलपमेंट भी उतना ही होना चाहिए. बिकॉज व्हेनेवर मेजर रिचिक सेज कि आपने वो फाउंडेशन शीट अगर भर ली तो लाइफ टाइम का काम हो जाएगा, तो मुझे पहले विश्वास नहीं होता था कि इतना भरवा रहे हैं यार, ये यार ऐसे ही बोल रहे हैं, ये नहीं होगा. बट वंस इट गॉट फिनिश्ड ना, तब मुझे लगा नहीं यार, बोल तो सही रहे थे. करने के पहले समझ में नहीं आ रहा था. मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ, अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, यू वांट टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट लेवल इन योर जॉब, अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो गो टू द नेक्स्ट जॉब, आंखें बंद करके जाओ. these guys are very good. मैं तो सिंपल इतनी लाइन है. मैं आई एम अ पर्सन दैट गोज बाय फीलिंग. मैं आई एम समवन who buys the person, not say even when you ask me कि मेरे को प्रोग्राम मैंने क्यों ऑफ किया था, तो आई टोल्ड यू अबाउट दैट लेडी जिसने मेरे से बात की. फॉरगॉट हर नेम, फ्रॉम यूके आई थिंक, आई डोंट नो, बट हाँ श्रेया आई थिंक, yes. Yeah. So I bought her because she wasn't forcing me. It's like कि तो आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा इंटरनेट पे लोग करते हैं ऐसे काम, राइट. सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था. तो मैं लोगों को भी यही रेकमेंड करता हूँ. ऐसे दे आर गुड पीपल, दे हैव मेड अ गुड प्रोग्राम व्हिच इज वेरी बेनिफिशियल, एंड
एक बार पैसा लगाने पे अगर लाइफ लॉन्ग कोई चीज काम आती है तो इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग दैट मनी, गो अहेड एंड डू इट, एंड फायदा ही मिलने वाला है।